So, hello students. Let we give some time to the students so that they will join, then we will start. Can you hear me? Students, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. At sharp 4:20, we will start the meeting. We will give only 2 minutes time to the students so that then after we will start the session. So first I will revise the session that on the last day, that is yesterday, I had been given you some important dates. So I will revise that because some of the students were coming late in the yesterday class session. So first 21, that is tomorrow, I think so. Yes, from tomorrow the form will be published through the CHSE portal. Through the CHSE portal, we will go on and we have to create an ID. We have to generate a password. We have to go for a permanent. We have to. Pilamane subha hochi? Yes, sir. Yes, sir. We have to go for a permanent, that is mobile number. That is very important. Everybody is having mobile numbers, but some of the mobile numbers are not permanent. But till the end of the admission process, what the number you are using from the last days, that you have to go with that number only till the end of 10th of October. Before that, you can't change your number. If you will change, then any of the information or updation will be mistaken by the students. So kindly go for your permanent mobile number when you are creating the ID and password. You should have keep an Gmail ID. ID is purely important for the form fill up procedure. So you have to go for the Gmail ID. So with the Gmail ID, proper Gmail ID means that you will give a wrong Gmail ID or you will give a Gmail ID with the capital letters. That will not help you, and that will be the mistake, because through Gmail they can send you the confirmation mail. So you have to take care of each and every events. So firstly, I will go for the session important dates. That is, yesterday I had been told, but I will repeat another time. Then after I will move on to the part of form fill up procedure. First process. That is what? That is 21 to 4th of midnight. 21st of August to 4th September, midnight 12. We have the form fill up procedure. So as I said yesterday, we have to do the form fill up procedure between 21 to 25, so that we will not be in a hurry state. If any of the documentation we will miss, we can prepare before the day of 4. If we will go for the form fill up procedure in fast, then it will give us the problem that we have to create the forms. So any of the documents, I had been told yesterday what are the documents required.
So those all the documents you have to ready. I am repeating the document. First, your Aadhaar card. Second, passport size photo 6 copies. थर्ड, स्कूल डॉक्यूमेंट. स्कूल से आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट लेना है. जैसे हम बोल सकते हैं 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट. ये सब स्कूल आपको एक बंच करके दे देगा जो कि स्कूल से आपको कलेक्ट करना है. और टोटल जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन में रहेगा. कॉलेज चॉइस फिलिंग जो रहेगा, आपको जैसे लास्ट सेशन में बोला था, टोटल आपका चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंसेस रहेगा. जैसे कि आप मान लो 1 नंबर में रेवेन्सा देना चाहते हो तो वो कंफर्म होकर दीजिए, क्योंकि 1 नंबर में आप जेकेबी के चाहते थे, 1 नंबर में रेवेन्सा दे दिए, रेवेन्सा से आ गया, फिर आप बोलोगे नहीं मुझे जेकेबी के चाहिए था, वो नहीं हो सकता है. आप अगर अपग्रेडेड लिस्ट में रखोगे तो फिर सेकंड सिलेक्शन में आपके पास है. मैं और एक बार ये चीज को क्लियर करता हूँ. पहला चीज जो है, मान लीजिए आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, वो एडमिशन प्रोसेस में मान लीजिए आप ऑटो अपग्रेडेड कॉलेज को देना मैंडेटरी है. मान लीजिए आपको रेवेन्सा कॉलेज का जरूरत है, मतलब आप नंबर 1 चॉइस में रेवेन्सा कॉलेज देना कंपलसरी है. मान लो आपका जेकेबी के कॉलेज आपका कंपलसरी जरूरत है, मतलब आप नंबर 1 में जेकेबी के देना कंपलसरी है. यही है. लेकिन अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज हमेशा प्रायोरिटी बेसिस अपग्रेडेशन लिस्ट रखना अच्छा होता है. जैसे कि सेकेंड सिलेक्शन और स्पॉट में आप लोगों को वही अपग्रेडेशन कॉलेज में सीट मिलने का चांस रहता है, इसलिए हम हमेशा अपग्रेडेड कॉलेज में देंगे. उसके बाद मैं आता हूँ सेकेंड डेट को. एक गया फर्स्ट सिलेक्शन. सेकेंड डेट जो है 9th of सितंबर. 9th of सितंबर में फर्स्ट सिलेक्शन का कट ऑफ मार्क निकलेगा. ये आपको मैं बता दिया था. जैसे कि कौन सा कॉलेज के लिए कितना मार्क्स का फिक्सेशन हुआ है वो निकल जाएगा. और आप लोगों के इंटीमेशन लेटर भी आपके मेल को आ जाएगा. और फिर आपको जो आपका जो वेब आईडी पासवर्ड बनेगा उसमें भी इंटीमेशन लेटर आ गया होगा. उससे भी हम प्रिंट आउट निकालेंगे एडमिशन प्रोसेस के लिए. इंटीमेशन लेटर में क्या रहेगा? इंटीमेशन लेटर में आपको कंफर्म किया जाएगा यू आर सिलेक्टेड फॉर द कॉलेज नेम लिखा जाएगा. लेफ्ट साइड में फर्स्ट सिलेक्शन लिखा जाएगा. देन आपको इंटीमेशन लेटर निकाल के आपका 11 से 18 तारीख तक 11th of September to 18th of September you have the time to go for the admission process. But on the intimation letter the date of admission and the date of venue of admission, मतलब कौन सा लोकेशन में आपका एडमिशन होगा, रेवेन्सा श्याम सेंटर में होगा या जेकेबीके में होगा या शैलवाड़ा में होगा, कहाँ पे होगा, वो सब वहां पे आपका टोटल डिटेल्स लिखा गया होगा. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटीमेशन लेटर you have to go to the SAM center on that day and on the particular time around 9 AM you have to move on. And leaving this thing, you have to think about the procedure of second selection. So after 18th, on the day of 21st, the procedure of the second selection cutoff mark will come. So from 24th to 28th, the admission process for second selection will be going on. So you should be ready for that. According to the you will say, sir, how you will know that on which college second selection had been came, which ID and password you had been generated on the first selection. On that ID and password only you can open the web, and on the second selection you what the college you had been selected, that will check. अगर कोई भी बच्चे को कोई भी कॉलेजेस चेंज नहीं हुआ है तो सेकंड सिलेक्शन नहीं आएगा वेब में, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. आप फर्स्ट सिलेक्शन में एडमिशन किए हो, सेकंड सिलेक्शन का कट ऑफ मार्क में आपको कोई भी कॉलेज में नहीं हुआ है. देन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कम, दैट इज द स्पॉट एडमिशन. सो ऑन द 3rd of October the spot admission mark will come in the notice board of the colleges, and on 5th of October the admission for the spot students will be occurred on the basis of the intimation letter. That will also come through the colleges and also come in the intimation letter. So be ready for that. This is the process I had been discussed.
in the last session, I had been discussed one important session, important topic that you had been remembered. Annex 7. What is Annex 7? Annex 7 कौन? मु दीटा भाषा रे तुमको Annex 7 बुझेबी. गोटे होची ओडिया रे, गोटे होची इंग्लिश रे. Annex 7 means if any of the candidate is not interested to take participation on the second selection, then they will submit the Annex 7 form on the first selection admission process. After submitting the Annex 7, he or she will be directly removed from the admission process. There is no requirement of the participating in the admission process, and the college in which he or she may take admission, that will be his or her confirmed admitted college. So this is the process. I will give you an example. What is the example? If any of the candidate give in their first choice BJP, in their second choice Rebensha, in the first selection he had been opted from Rebensha Junior College, then he is not interested to go for the upgradation process online form fill up. That is, he is not interested to go BJP. If he is eligible to come from BJP in the second selection, but he is not interested. So in the process of the first selection means in the before the date of 18th of August, you have to submit your Annex 7 form. 18th of September, sorry, before submitting the Annex 7 form, 18th of September 12 midnight, you have to submitted that form. If you will submit, then you are coming out from the admission process, so you will not go for the BJP Junior College. Then ओडिया रे कहूची Annex 7 फॉर्म होची गोटे एमतिया फॉर्म जोठी जो पिलाटी रो गोटे कॉलेज आसी जाईची ताकू से कॉलेज रे इंटरेस्ट अछि आउ कॉलेज रो चेंजिंग रे किछि रिक्वायरमेंट नाही से चाहुनी कॉलेज चेंजिंग रे पार्टिसिपेशन नबा पई देन आफ्टर से आउ कोनोसी प्रकार रो प्रॉब्लम तारो नाही जोडा कि से इजीली कंफर्टेबली से Annex 7 डिपॉजिट कर दो जदी पिलाटी चाहुची ना मु एडमिशन प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करिबी देन Annex 7 डिपॉजिट करिवार आवश्यकता नाही बार बार कहूची स्टार मार्क दे कहूची जे जदी से पिला सेकंड सिलेक्शन ने नेक्स्ट कॉलेज वेट करिया पई चाहुची Annex 7 न डिपॉजिट करिवार कोनोसी कारण नाही देन सेकंड दैट इज Annex 7 न टोटल करिकुलम तुम बुझी गला तो एबे इंपोर्टेंट डेट्स गला Annex 7 गला एडमिशन पई डॉक्यूमेंट्स गला ए तीनटा जिंस रे कोनोसी पिलांकर डाउट्स अछि मते आगो पचार देन हमें फॉर्म को जिबा पिला माने ए तीनटा जिंस रे कोनोसी पिलांकर डाउट अछि सुनी पाउछो पिला माने dear students if anybody having any doubts in the Annex 7 in the admission process in the dates of commencement in the that is documents requirement any doubts if anybody have you can ask me after clearing we will go to the form format yes any doubts sorry hello hello you are audible sir student any doubts Bhagyasri any doubt no sir okay Antara any doubt no sir okay Vishwajit any doubt Vishwajit no, any doubt no sir okay Vishwajit Vishwajit I had been talked about your sports certificate after the call end you just call me I will tell you to wherever you have to do okay okay sir yes any doubt Bhagyasri Devasmita any doubt Munumohan any doubt no sir okay Smita any doubt no sir okay so let me start the session sir can you give me the sharing of my email Chinmay sir you can directly share I can share no that is only the host can share in this meeting this is coming
Just a minute. In sharing, that is coming, only the host can share. Just a minute. Just a minute. Okay, okay. So my dear students, I am sharing the my mobile through you, that you can see the forms in an easy way. No issue will be there. Okay, now I am the host. So I can share now. I am going to my documents. I am screen sharing so that will be easy for you. So my screen is coming on your screen. Yes, So sir. okay, Yes, so sir. I am going to my mail ID. In my mail ID there is a demo form. I am going, yes. So this is the form. So I am opening the form. Okay, so just see. This is the form that was for the last year. This is the form that was for the last year. Kindly zoom this by showing all the things that you are having. See, this type of form will come tomorrow. This type of form, common application form, admission to higher secondary school, academic session 2020 and 21. This is the form for 2019 and 20. So just see that on which way the form will come. Just see. You can see my screen. Everybody can see. No issue will be there. So first come to 10th बोर्ड डिटेल्स. यहाँ पे आप लोगों को 10th नंबर 1 पॉइंट देखिए, मनी रिसिप्ट नंबर और नंबर ए ऑफिशियल कार्यक्रम है, उसमें हमारा कुछ भी काम नहीं है. So don't go for that. Go directly to number 1. I am telling one by one each and every point. So be careful and listen carefully. So any doubts you can ask over here only. 1, 10th board details means we are having BSc Odisha, Board of Secondary Education Odisha. We are having CBSE Odisha or New Delhi, sorry, CBSE New Delhi. Then ICSE New Delhi. So these are the examinations board. So you will ask me one question, sir, is it required to submit all the things? See my dear students, on the roll number side, when we will click the roll number, each and every documents for the BSc means Board of Secondary Education students will directly come. For the CBSE students, we have to mention on the form, but for BSc students that will implicitly come, and your 10th marks are also coming on that point below. When you will submit the form tomorrow, you can know. And applicant name, father's name, mother's name, that is coming implicitly. Implicitly means automatically. You have not to do anything. When you will give your roll number, your name, your father's name, your mother's name will come implicitly. Then comes to blood group. My dear students, पहले दिन से आप लोगों को बताया गया है कि ब्लड ग्रुप जो आप लोगों का जो भी है वो आप ब्लड ग्रुप के हिसाब से उसमें मेंशन कर दीजिएगा. देन आपका ये आपका इम्प्लिसिटली नहीं आएगा, ये हम खुद चूज करेंगे. वहां पे चूजिंग ऑप्शन होगा, वहां हम चूज करेंगे. देन आपका सेक्स, मेल और फीमेल, व्हाट एवर इट मे बी, यू कैन गिव दैट. रिलीजियन, Hindu, Muslim, Christian, whatever it may be, that is you have to give. Date of birth, also date of birth you have to give. The right date of birth which is indicating in your 10th mark sheet or certificate. Don't give other date of birth what is mismatching your details, otherwise your form will be postponed. So be careful on that. Then personal details, nationality, that is Indian, whatever it may be, Indian, mother language, mother tongue, Odia, Aadhaar card number, I had been told you that is required. Parents contact number, this is the number, my dear students, this is the number on which we have to keep it till the end of the admission session. So be careful. Then address of the correspondence. What is the address? Correspondence means on which area now you are staying. If
any type of miscarriage, then they will send you letter to your home. That's why they need correspondence address and all state address, telephone, district, block, pin code, email. These all things should be in a proper way. That will help you in a very easy manner. So be careful with this. Then reservation details. In the last session, I had been discussed about the reservation details. On the reservation details, I had been told you ST. देखो कौन-कौन reservation अच्छी पिला मैंने देखी दियो इटी. ST, SC, OBC, SCBC, general. Then personal with disabilities. माने मु कहितली काली तमकू any type of physical handicap अच्छी एठी तमे yes मारी पारिबो आउ तमर मेडिकल सर्टिफिकेट एडमिशन टाइम रे देखैबो जोटा पुनी एबे कार करेंटली बाहर करिवो करंट का निकलना पुराना वाला नहीं चलेगा. Then ex serviceman quota is going on, service defense personnel is going on, children of matrices is going on. These all the things. Then weightage details. See NCC, NCCC, NCC का दोनों टाइप का सर्टिफिकेट होता है. एक प्रेसिडेंट लेवल का, एक राज्य गवर्नर अवार्डेड होता है. तो ए ग्रेड अगर प्रेसिडेंट लेवल का है, सी ग्रेड अगर गवर्नर अवार्डेड है, जो आपके पास है वो चीज को आपके पास यस मारना है. देन आपका मान लीजिए स्काउट गाइड. स्काउट गाइड क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता है वही सेम गवर्नर अवार्डेड है या प्रेसिडेंट अवार्डेड है, जो है उसके हिसाब से आप लोगों को लेना है. देन आपको मैं आ गया जैसे कि स्पोर्ट्स. लास्ट क्लास में विश्वजीत के साथ बात किया था. स्पोर्ट्स क्या होता है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, एनी टाइप ऑफ लेवल में आपका स्पोर्ट्स है तो आप लोग स्पोर्ट्स को मेंशन कीजिए. अभी रिसेंटली वही स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को स्पोर्ट्स ऑफिसर से वेरीफाई करना पड़ेगा. स्टेट स्पोर्ट ऑफिसर एक रहते हैं सेक्रेटेरिएट में जो वो वेरीफाई करवाएंगे, तो वो रिसेंटली आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं एक्सेप्टेबल. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. दैट्स व्हाई यू हैव टू वेरीफाई mandatorily. Then the next thing we will come, that is your 10th marks. I had been told you from the very beginning that it will come implicitly. Your 10th marks will come implicitly, so no requirement of submission on that. But the CBSE students, you are mandatory to give the marks because your marks will not implicitly come, so you should have to give the marks on this column, on this row, on column. Have you been passed 10th exam complementarily? No, you all are regular students, so you will say no. Then income details, father occupation, mother occupation, आपके पिता और माता क्या कर रहे हैं. Then annual income आपका पेरेंट्स का कितना है आप यहाँ पे देंगे. Then बैंक informations, जैसे आप लोगों को यहाँ पे annual income, अगर यहाँ पे एक other ऑप्शन है, other मतलब आप लोग चाहते हो मुझे स्कॉलरशिप का जरूरत नहीं है. मान लीजिए आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को स्कॉलरशिप का जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स में अगर अदर्स दे दोगे तो फिर यहाँ पे बैंक डिटेल्स नहीं दिखाएगा. लेकिन जैसे आप लोगों को अगर आपको स्कॉलरशिप का जरूरत है तो देना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे आपका डिटेल्स दे दोगे, फिर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, जो कि ये आपका अकाउंट होना चाहिए, ये आपका अकाउंट इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दोगे. फिर रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, जो आप लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अटेंड किए हैं, नेम ऑफ द स्कूल जहां पे आप अटेंड किए हैं, लोकेशन ऑफ द स्कूल, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ईयर ऑफ लिविंग क्या है. मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि व्हेनेवर आवर स्कूल मींस, मान लीजिए सरस्वती शिशु मंदिर जगतपुर, सरस्वती शिशु मंदिर जगतपुर कॉलेज स्क्वायर के अंडर में आ रहा है, तो आपका जो लोकेशन कॉलेज स्क्वायर में ही देना पड़ेगा यहाँ पे. इसलिए क्योंकि आपका कॉलेज का 10th एग्जाम आप कॉलेज स्क्वायर शिशु मंदिर के अंडर में दिए हो, इसलिए वो चीज आपको ध्यान में रख के काम करना है. फिर आपका यहाँ पे देख लीजिए कॉलेज, जो मैं कल बताया था क्या, दैट इज कॉलेजेस, ऑप्शन ऑफ कॉलेजेस. देखिए सेकेंड पेज को देखिए, ऑप्शन ऑफ कॉलेजेस. जैसे
ए लड़की दिए थे रेवेंसा जूनियर कॉलेज, जेकेबीके, स्टुअर्ट, सैलबड़ा, क्राइस्ट। ये टोटल 5 प्रोसेस आपका दिया गया था। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन हुआ था। आप बोलोगे सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है? ये मैं क्लियर कर लेता हूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आप लोगों को, हम अभी कोविड-19 का सिचुएशन है, तो कॉलेज में लाइन करके हम पेमेंट डिपॉजिट नहीं कर सकते फॉर्म के लिए। जैसे कि इस साल गवर्नमेंट बोला है 100 रुपीज कम करके लेगा पिछले सालों से। तो जैसे हम ये बात बोल रहे हैं, तो ये जो फॉर्म फिलअप है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो सिलेक्शन हम लोग दे रहे हैं उसको हम ऑनलाइन ऑटोमेटिकली पेमेंट भी कर सकते हैं। श्याम सेंटर का जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ आओगे तो फॉर्म फिलअप करोगे, तो ये लोग आपका ऑनलाइन में उनका अकाउंट से डेबिट करके आपको ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करके दे देंगे कंफर्मेशन। देन यहाँ पे देखिए, ये जो है सबमिटेड बाय मी, मतलब आप जो एबव कॉलेजेस और कोर्सेस दिए हो, यहाँ पे देखिए स्ट्रीम साइंस, कोई कॉमर्स आर्ट्स लेना चाहता है तो कॉमर्स आर्ट्स देगा। देन कंपलसरी सब्जेक्ट, मैं जैसे आप लोगों को बोला हूं, एमआईएल पेपर ओडिया ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, ऑल्टी इंग्लिश ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज पेपर जो है वो आप कंपलसरी ले सकते हो। देन आपका देखिए वो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स है इलेक्टिव, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 4th ऑप्शनल में, बायोलॉजी रख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 4th ऑप्शनल में, मैथ रख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 4th ऑप्शनल में, आईटी रख सकते हो। जो बच्चा को मतलब बायोलॉजी का जरूरत नहीं है वो आईटी रख सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आपका टोटल प्रोसीड्योर है जो आप आराम से कर सकते हो। हॉस्टल ऑप्शनल, यहाँ पे देखिए, कोई रेवेंसा में चाहता है हॉस्टल ऑप्शन यस, जेकेबीके में चाहता है हॉस्टल ऑप्शन नो, बिकॉज जेकेबीके में हॉस्टल नहीं है, आप देने से भी नहीं होगा। तो ऐसे स्टुअर्ट, क्राइस्ट, जिसमें आपको हॉस्टल का जरूरत है, आप हॉस्टल ऑप्शन में यस दोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज आप हॉस्टल का ऑप्शन नहीं दिए हो, कल आप बोल रहे हो कि हमें हॉस्टल चाहिए, that is really a top test to give you, to assign you hostel. So from the very beginning on the process of form fill up, you should have to take care of the hostel option procedure. Then आपका जैसे मोड ऑफ पेमेंट है, मोड ऑफ पेमेंट जो है आपका, ये पेमेंट डिटेल्स है, ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस, ये जब हम ऑनलाइन में पेमेंट कर लेंगे वो डायरेक्टली दिखा देगा। फिर ये देख लीजिए, आपका यहाँ पे आप लोगों का साइन पेरेंट्स का है, यहाँ पे आप लोगों का साइन एप्लीकेंट का है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वुड एनक्लोज विद द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये हम पेमेंट करने के बाद वहां पे एक सेल्फ साइड पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, देखिए ये लड़की का जैसा लगा हुआ है, वो मैं अपलोड करके डाल दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ट्रू कॉपी ऑफ एचएससी मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो स्कूल देगा आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास स्काउट गाइड सर्टिफिकेट है, SC/ST का है जो है, वो आपको इसमें देना है। ये हमको डिपॉजिट कहाँ पे करना है, जाके डायरेक्टली श्याम सेंटर में ये फॉर्म को डिपॉजिट करना है। श्याम सेंटर जैसे कि रेवेंसा हुआ है, जेकेबीके हुआ है, सौरबड़ा हुआ है, तो वहां पे हम आराम से फॉर्म डिपॉजिट करवा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ये टोटल प्रोसीड्योर है जो आप आराम से देख सकते हो। आफ्टर दैट दिस कॉपी विल कम, दिस इज एप्लीकेंट कॉपी। देखिए ये जो पहला 2 पेज था, ये हमको कॉलेज में डिपॉजिट करना है, 1 और 2। ये एप्लीकेंट कॉपी ऑटोमेटिकली पेमेंट होने के बाद ये पेपर आएगा, जो एप्लीकेंट कॉपी को एडमिशन के टाइम में हमको लेके जाना है। फॉर्म फिलअप हम कर लिए तो एप्लीकेंट कॉपी हमारे पास आ गया, एप्लीकेंट कॉपी और एक इंटीमेशन लेटर, ये दोनों लेके हमको एडमिशन प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स के साथ ओरिजिनली जाना है। इसलिए ये कॉपी ध्यान से आपके पास रखना, अगर गुम हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। ये दिस इज द एप्लीकेंट कॉपी। ये टोटल है जो कि टोटल प्रोसीड्योर ऑफ द एडमिशन फॉर्म। आप और एक बार ये फॉर्म थोड़ा लाइन अप करके देख लीजिए, मैं थोड़ा टाइम देता हूं 2 मिनट, आप आराम से देख लीजिए। ये आपका श्याम डिपोजिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है। जो कि लास्ट ईयर का है, इस साल भी इस टाइप का ही एक फॉर्म कल पब्लिश आउट होगा, जिसमें हम टोटल डॉक्यूमेंट्स के साथ डिपॉजिट करेंगे।
ये आपका सेकंड है जो कि हम कॉलेज चॉइस फिलिंग किए थे। कॉलेज चॉइस फिलिंग के बाद हम एक कॉलेज अपने आप से सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे अंडरटेकिंग साइन रहेगा। दिन ये जो नंबर 1 पेज और नंबर 2 पेज को हमको सैम सेंटर में डिपॉजिट करना है और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को एप्लीकेंट कॉपी जैसे कि हमको डालना है। तो इतना तक कोई भी स्टूडेंट्स का कुछ डाउट है तो बोल दीजिए प्लीज। सर आई हैव अ डाउट। हाँ टेल। सर हमें को वेबसाइट रो येडा फॉर्म फिलअप येडा। You are having a very innovative doubt. The website is not launching till now. When the website will come, we will send you in our WhatsApp page. Okay. ओके सर। Tomorrow morning that will launch. That from which website we will get in the form. So after after launch by the government, I will directly send to you. No issue will be there. Through WhatsApp group. सर Yes. जदि हमें बैंक रे पेमेंट करिवो ऑनलाइन ताले हमें केमति करिवो? बैंक रे पेमेंट करिवा दरकार नै जियो। डायरेक्ट हमें कार्ड रे पेमेंट कर परिबा। हमें एठी बसी की पेमेंट करिबा ऑनलाइन। डेबिट कार्ड रे पेमेंट करिबा। तमे फॉर्म आउ डॉक्यूमेंट नै के आसिले एठी से माने कर देबे किछ असुविधा नै। आपन को सेंटर रे? हां सेंटर रे कॉलेज स्क्वायर ब्रांच रे। ओके सर। तमे केवल जो फॉर्म टा फिलअप है कि पैसा डिपॉजिट कर देलु हमें ऑनलाइन में से जो पेज 1 और पेज 2 को नहीं कि सैम सेंटर रे तमे डिपॉजिट करबा आ किछ नै। ऑटो वैलिडेटेड भी हेई जीवो सेटा। एनी ऑफ द स्टूडेंट एनी डाउट्स? तो मु आसुची पुनी फ्रंट पेज को मु शेयर मु तो हमें तो कथा हेई गले ए विषय रे। तो एबे हमें कथा हेई जिबा आउ किछि जदि कि तुम मानकर अछि डाउट कुओ। पिला माने किछि डाउट अछि आउ तमरा जहा डाउट भी हमें आराम रे शेयर कर परिबो तम माने कुओ। आउ किछि डाउट नाही तो तम माने माइंड। हां कुओ सर काली सर स्कूल सर्टिफिकेट दरकार। स्कूल रो सर्टिफिकेट ता दरकार जोटा कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट ता से माने तुमको देइथिबे जोटा कि बाय द चांस जदी भी माने प्रोविजनल से एथि पई लिखुजी काहेना बेले बेले कोन हेता है ना एडमिशन फॉर्म फिलअप बळकू ओरिजिनल सर्टिफिकेट स्कूल को आसी नता है बट प्रोविजनल टा संग संग आसीबो 7 दिन परे ओरिजिनल आसे सेट पई से प्रोविजनल मांगीची तेनो फॉर्म फिलअप बेले प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट हो। आज्ञा सर सेटा तमे स्कूल लो ही पाइबो से सर्टिफिकेट टा भी स्कूल लो ही पाइबो। आज्ञा स्काउट गाइड एनसीसी एगुडा सब स्कूल लो ही पाइबो। एनी अदर इश्यूज? Any of the issue you are having you can clear, no issue will be there. So let we end the session. तम माने सब ऑनलाइन में क्लास करूचो? तम माने हमर रिकॉर्डेड क्लासेस करूचो? यस सर। यस सर। सब भल Yes sir. ओके तमरो लाइव क्लास गोटे रहिबो काली लाइव डाउट क्लियरिंग गोटे रहिबो मु तुमको टाइम कहिबी तमे से टाइम रे जूम डाउट क्लियरिंग काली गोटे रहिबो तुमरो। अच्छा फिजिक्स रो डाउट क्लियरिंग किछ अछि? फिजिक्स रो